एक वचन मैं पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 16वीं आयत। Revelation chapter 1 verse 16. ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये वचन है। This verse is about the Lord Jesus. वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था He had in his right hand the 7 stars. और उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। Out of his mouth went a sharp two-edged sword. उसके मुख से तेज दोधारी तलवार निकलती थी। Out of his mouth went a sharp two-edged sword. कभी आपने सोचा है कि यीशु के हाथ में दो धारी तलवार क्यों नहीं है? Have you ever thought, why does Jesus not have the two-edged sword in his hand? इसीलिए आज ध्यान से सुनिएगा। This is why I want you to hear carefully today. ओके, दो धारी तलवार कहां से निकल रही है? Where is the two-edged sword coming out of? प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकल From the रही है। mouth of the Lord Jesus. स्वॉर्ड या तलवार क्यों दी जाती है किसी को? Why is a sword given to someone? तलवार अब तो गन्स हैं, मगर पहले जब लड़ाई होती थी तो तलवार लेकर लड़ाई करने जाया जाता था। We have guns nowadays, but back in the day when there was a war, they would take swords and go to fight. अगर तलवार है तो इसका मतलब एक लड़ाई है, If there is a sword, that means there is a fight. और अगर लड़ाई है तो उसके लिए एक हथियार है। And if there is a fight, then there is a weapon that is designated for it. बाकी जगह कई लोग हाथों में तलवार लेते हैं, मसीह के लोग हाथों में तलवार नहीं लेते। In different places, the people they take swords in their hands, but believers, we don't take the swords in our hand. नो, हम एक अलग तरह की तलवार दी गई है। We have been given a different kind of a sword. और ये जो तलवार है, And this sword, इसकी सामर्थ जो शारीरिक 1 करोड़ तलवारें हैं उससे भी ज्यादा है। the power of this sword is greater than 1 crore physical swords. मगर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे मसीहों को नहीं आता ये तलवार कैसे चलानी है। But the problem is many Christians, many believers do not know how to use this sword. अगर किसी के घर में बहुत तेज दो धारी तलवार है और एक बच्चा उस तलवार के पास जाएगा तो वो क्या करेगा? वो अपने को लहूलुहान कर लेगा। If somebody has a sharp two-edged sword in their house and a child goes near it, the child will most likely harm himself. ओके, ऐसे ही आज कितने विश्वासी हैं जो कलीसिया नहीं जाते, खुद बाइबल पढ़ते हैं, मगर क्योंकि एक ऐसी मिनिस्ट्री के अधीन नहीं जिनको परमेश्वर ने बुलाया है, तो उससे अपने को भी काटते हैं और दूसरों को भी काटते हैं। Similarly, there are so many believers today that sit home, they don't go to any church. वो They are- अपने इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं, यूट्यूब में जाते हैं, फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं। They don't go to any church, not under any ministry which has been called to teach the word. So then they take out their own interpretation and they harm themselves and they जो harm others. तलवार शैतान के विरोध चलानी थी वो तलवार भाई बहनों के विरोध में चलाते। The sword that was given to them to use against the devil, they use it against brothers and sisters. इसीलिए परमेश्वर ने अपनी देह में टीचर्स रखे हैं। This is why God has kept teachers in his body. ओके, आमेन। Amen. इसीलिए 5-fold मिनिस्ट्री रखी है। This is why God has kept this fivefold ministry. तो अब मैं आपके साथ कुछ बहुत जरूरी आज सिखाता हूं और मैं चाहता हूं आप ध्यान से इस बात को सुनिएगा। So I want to teach you something very important and I want you to hear this intently. यीशु के मुंह से क्या आ रही थी? What was proceeding from Jesus' mouth? शार्प से शार्प, यानी पैनी टू एज्ड स्वॉर्ड। एक तेज दो धारी तलवार यीशु के मुंह से निकल रही थी। तेज दो धारी तलवार यीशु के मुंह से बाहर आ रही थी। A sharp two-edged sword was coming out of his mouth. और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर तलवार है तो इसका मतलब क्या है? क्या है? एक लड़ाई है। और बाइबल हमें कहती है हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के बीच में हैं। And I told you, if there's a sword, that means there's a battle. And the Bible tells us you are in the middle of a warfare. ओके, Of a, जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो कई बच्चे वॉर के बीच में पैदा हुए। when World War II was happening, some children were born in the midst of the World War.
ओके और कई देश ऐसे हैं जैसे स्विट्जरलैंड है और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हर किसी मेल जो मर्द है, कई जगह तो फीमेल्स भी, इजराइल में फीमेल्स भी हैं, मगर जहाँ पे हर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग में जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ लगातार वॉर चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति मिलिट्री ज्वाइन ना करे, ये पॉसिबल नहीं है। रूल है, अगर आपके देश में लड़ाई चल रही है तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको हथियार चलाना आना पड़ेगा। And there are some nations like Sweden where every male has to join the army and get trained to fight war if there's ever a war that breaks out. Countries like Israel, they both females and males they take training. मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है। I have a और news. न्यूज़ ये है कि you were born in the midst of a war. आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए हैं। जब आप मसीह में पैदा हुए तो आप एक लड़ाई के बीच में पैदा हुए। When you were born in Christ, you were born in the middle of a war. सो क्यूट मसीह बन के नहीं जी सकते। You cannot live as a cute Christian. मार देगा शैतान समय से पहले। The devil will kill before time. तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, So you will need to take training. आपको मसीह में बढ़ना पड़ेगा, You will have to grow in Christ. आपको सीखना पड़ेगा तलवार कैसे चलाते हैं, You will have to learn how to और use your खुद sword. सीख के फिर और भाई बहनों को भी सिखाना पड़ेगा। And after you master it, you have to teach your brothers and sisters as well. ओके सो इफिशियंस 6 में बताता है कि हम एक आत्मिक मल्लयुद्ध के अंदर हैं। Ephesians 6 teaches us that we are in the middle of a war. और बाइबल कहती है इसीलिए अपने सारे जो कवच हैं, जो आत्मिक हथियार हैं, वो पहन लो। And this is why the Bible says, put on the whole armor of God. क्यों पहन लो कवच को? Why should you put on the whole armor? क्योंकि आप एक बोलो लड़ाई के बीच में हैं। Because you're in the middle of a warfare. इसीलिए यहाँ सत्संग सुनने नहीं आ रहे हो आप। So you've not come here to hear a teaching. फिर से बोल रहा हूँ, सत्संग सुनने नहीं आते हो संडे को, योद्धा बनने आते हो संडे को। You don't come here to hear a religious teaching. You come here to become a champion, a warrior. ओके सो अब इफिसियों 6:17 में हम देखेंगे, Ephesians 6:17. एंड टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन उद्धार का टोप एंड द सोर्ड ऑफ द स्पिरिट। और आत्मा की तलवार को ले लो. आत्मा की तलवार को ले लो। Take this sword of the spirit. बाइबल कह रही है आत्मा की तलवार ऑप्शन नहीं है, The Bible is saying, take the sword of the spirit. It's not an option. पकड़ना पड़ेगा तलवार को, You will have to hold the sword. सीखना पड़ेगा चलाना। You'll have to learn to use it. ये शारीरिक तलवार नहीं जो हाथों से उठाई जाती है, ये आत्मा की तलवार है, ये मुंह से निकलती है। This is not a physical sword you can carry in your hands. This is the sword of the spirit that comes out of your mouth. यीशु के कहां से निकल रही थी तलवार? Where was the sword coming मुंह out से of? निकल रही थी। Out of Jesus' mouth. उसकी आर्मी में आप हो, आपकी तलवार कहां से निकलेगी? मुंह से निकलेगी। You are in his army, so where will your sword come out of? Your mouth. पौलुस इसमें साफ बता देता है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है भैया कि आयतें लेके एक दूसरे को हम लोग घायल करें। Paul tells clearly we are not fighting against flesh and blood that we take verses and start to wound each ये other. फरीसी की आत्मा है। एक फरीसी की आत्मा बाइबल को लेकर अपने भाइयों पे तलवार मारते हैं। That is the spirit of a Pharisee. Pharisees take up verses from the word and they wound their brothers and sisters. पौलुस कह रहा है हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। But Paul is saying our fight is not with flesh and blood. ओके मगर किससे है? But who do we fight? प्रधानताओं से, दुष्ट आत्माओं से। ये वो जो स्पिरिचुअल रेल्म में है, जो आत्मिक जहां में दुष्ट आत्मा है, उनसे लगातार आपकी एक लड़ाई है। Against principalities and powers, those spiritual powers, we have a fight with them. और आप अनजान नहीं रह सकते। And you cannot stay ignorant. होशाया 4:6 में परमेश्वर का वचन कहता है मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण क्या हुआ? नाश हो गई। Hosea 4:6 it says, my people are destroyed because of lack of my knowledge. सो क्यों हो रहे हैं आज मसीह लोग नाश? इसलिए कि परमेश्वर चाहता है वो नाश हो? कि कई लोग सिखाते हैं अरे बीमारी आई तो भी प्रभु ने भेजी। अरे परमेश्वर कह रहा है मेरे लोग अगर नाश हो रहे हैं तो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। Why are God's people being destroyed? Is God sending sickness? Because some people say if sickness came, it's from God. No, but God is saying my people are perishing because they have no knowledge. They don't have my knowledge.
सोचो, मैं चाहता हूं आप एक आर्मी कैंप के हिसाब से सोचो, इंटेंस लड़ाई चल रही है Now think it through an army और camp. कोई भी आर्मी में किसी बंदे को गन देकर उसको बॉर्डर पे नहीं भेज देते. Think it through an army camp that in the middle of intense warfare, nobody will just hand them a gun and send them to the border. कई लोग हमें बोलते हैं आप चर्च में क्यों बुलाते हैं लोगों को, उनको बोलो बाहर जाके प्रचार करें. अरे पहले ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे, या भेज देंगे बैटलफील्ड में. Some people say, why are you calling people to the church? Why don't you send them out to preach? First, will we train them or not? और इसीलिए मैं इतने मसीहों से बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं रोज, जब घर में आते हैं तो अपनी खुद की वाट लगी रखी है ऊपर से नीचे तक. And this is why there are so many believers, they are going out and preaching every day, but when they come back home, their life is miserable inside the house. क्यों? क्योंकि लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है. बोलो, लड़ाई से पहले ट्रेनिंग है. Because there is training before the war. अब सोचो, ट्रेनिंग चल रही है और एक बंदा है, imagine- जब सब ट्रेनिंग चल रही है वो ध्यान नहीं दे रहा, वो Imagine- अपने मस्ती कर रहा है अपनी, Imagine फोन में training- लगा हुआ है. Training is going on and there's one person not paying attention on his phone, distracted. जब उनका इंस्ट्रक्टर सिखा रहा है, देखो ये गन है, इसको आप ऐसे करोगे, ये लॉक होता है, ग्रेनेड को ऐसे निकालोगे, पिन ऐसे निकलती है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा. When the instructor is teaching them, this is your gun, this is how you put off the safety, this is how वो the grenade. कैजुअल है उसका एटीट्यूड. He's कैसे just- है, हाँ क्या हो गया तो. He's just casual, doesn't care. और He's फिर like, लड़ाई में जब गया, अब ग्रेनेड से पिन खुली नहीं रही, now when he goes to the war, he doesn't know how to take the pin out of the grenade. गन अनलॉक ही नहीं हो रही. He's not able to क्यों? unlock his क्योंकि gun भाई साहब का ध्यान कहीं और था जब ट्रेनिंग हो रही थी. because he was distracted during the training. सबसे पहले कौन मरेगा लड़ाई में? Who will die first in that ये war? This guy. अगर अंत तक जीवन जीना है तो उस प्रशिक्षण को हल्का मत जानो जो मसीह में तुम्हारे लिए रखा गया है. If you want to live a victorious life till the end, do not despise the training that has been kept for you in Christ. उस वचन को हल्का मत जानो जो हर रविवार को परमेश्वर का आत्मा आपके और आपके बच्चों के लिए भेजता है. Do not despise the word that the Spirit of God sends for you and for your children every Sunday. ये कोई सत्संग नहीं है, This is no religious ये gathering. आत्मिक प्रशिक्षण है योद्धा बनने का This मसीह is में. spiritual training to make you warriors in Christ. ओके, सो अब बाइबल हमें कह रही है क्योंकि हम एक लड़ाई में, और सारा कवच है, मेरे पास वो समय नहीं है, आज मैं आपको ऑफेंसिव लड़ाई सिखा रहा हूं. Now the द Bible says, बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस. the Bible says we have the whole armor, but I'm not talking about defensive today. I'm talking about offensive. The best, सबसे अच्छा जो बचाव है वो हमला करना है. कोई आया आपके घर में मारने के लिए, आपको पहला मार दिया ना आपने, एक पंच, पहला अटैक जब आपने कर दिया तो यू आर ऑन द विनिंग साइड. If someone enters your house trying to harm you, if you give them the first blow, you've already won the battle. सो जो हमारे कवच है वो पूरा डिफेंसिव कवच है. Our entire- उद्धार का टोप, धार्मिकता की झीलम, सत्य की बेल्ट, सुसमाचार के जूते, ये सब क्या है? ये कवच है. Our entire armor is protective. The helmet of salvation, breastplate of righteousness, the belt of truth, the shoes of gospel, they are to protect you. अब सोचो, आप लड़ाई में चले गए केवल कवच पहन के, मगर कोई हथियार नहीं है, तो आप मार खा रहे, अब लग नहीं रही आपको, मगर मार तो खा रहे हो. Now imagine you go to the war wearing your protective gear, your armor, you do not have any sword, any offensive weapon with you, so you will be just taking hits upon hits. तब तक मार खाते रहोगे जब तक हथियार नहीं उठाओगे. You will keep on taking hits until you take up your weapon. और बाइबल कहती है हमारे पास भी हथियार हैं. And the Bible says we also have weapons. हमारे पास आत्मा की चोखी और पैनी दो धारी तलवार है. We have the sharp two-edged sword of the Spirit. वही तलवार जो मेरे यीशु के मुंह से निकलती है, वही तलवार उसने आपके और मेरे मुंह में भी डाली है. The same sword that comes out of our Lord Jesus' mouth, the same sword God has given to us, to you and me. अलग नहीं, It's not a different sword. वही तलवार दी है. It's the same sword. आपने देखा है, अच्छा मैं फिर से आपसे एक उदाहरण, यहाँ पे कितने लोगों ने गिटार बजाने की कोशिश करी? मुझे हाथ दिखाओ अगर How कभी many people tried to play guitar हाँ, or tried to learn it? मगर बहुत मुश्किल था तो आपने छोड़ दिया. मुझे दिखाओ हाथ. But it was so difficult that you left it. How many people did that? एक व्यक्ति यहाँ पे आ सकता है और बहुत बढ़िया गिटार बजा रहा है, आपको वाह कितनी बढ़िया आवाज निकल रही है इसी गिटार से. One person can come here, play the guitar, and you say, "Wow, what a beautiful sound is coming और out." फिर of एक the guitar." दूसरा व्यक्ति आए और सेम गिटार को पकड़े और चल रहा है झड़ंग बड़ंग झड़ंग बड़ंग. And then another person can come and make absolute nonsense सेम गिटार है, from the same guitar. मगर एक प्रशिक्षित है, एक प्रशिक्षित नहीं है. But one is trained and the other is not trained.
वही तलवार यीशु ने आपके मुंह में भी दी है। अब आपको सीखना है ये जो तलवार है, हाउ यू कैन यील्ड दिस वेपन, इस हथियार का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हो आत्मिक गढ़ों को ढाने के लिए। The same sword the Lord Jesus has now put in your mouth, He has given it to you. You can learn how to use this sword to bring down strongholds. अगर आपकी लड़ाई हो रही है और आत्मा की तलवार हमारे मुंह से है, If you are in the middle of a warfare and the sword of the Spirit is coming out of our जो mouth, हथियार है वो तलवार है, The तो अब weapon- मुझे बताओ कौन है जो नहीं चाहता कि आप वो तलवार मुंह से निकालो? if your weapon is the Come on, sword, talk to tell me. me, who doesn't want? कौन? शैतान। आज बड़ी शिक्षाएं जो घोषणा का विरोध कर रही है, समझ जाओ ये किसके बच्चे हैं। There are many teachings about don't declare, you should not make declarations. You should understand whose children are these. क्योंकि वही है जो नहीं चाहता कि परमेश्वर का वचन आपके मुंह पे हो। Because it is the devil who doesn't want that the word of God will be in your mouth. ओके, आज मैं आपको वचन से दिखाऊंगा, एक नहीं 10 आयतें दूंगा। I will show you from the word, not 1, 10 verses. हम अपनी कोई प्रीचिंग नहीं कर रहे इस जगह में, We are not preaching our own message here. मगर जो आत्मा की बातें हैं, बाइबल कहती है जो शारीरिक मसीह है ना, जो शारीरिक ईसाई हैं, उनको समझ में नहीं आएंगी ये बातें, क्योंकि these things are spiritually discerned। But the things of the Spirit cannot वो be लड़ते discerned. हैं, कहते हैं ये न्यू एज टीचिंग दे रहे हैं, ये वचन की घोषणा कर रहे हैं। अरे तो किसकी घोषणा कर रहे हैं? वचन, परमेश्वर की वचन की घोषणा कर रहे हैं। They said this is new age teaching, you're declaring the word. What are we declaring? The word of God. ये शैतान से है। They are यानी from the devil. शैतान अब परमेश्वर का वचन लोगों के मुंह में डाल रहा है। वाह, हालेलुया। They said this teaching is from the devil. Okay, so now the devil is putting God's word in people's mouth. Wow. मतलब वो कह रहा है ये लो तलवार और मारो मुझे। So the devil is saying, take your sword and hit me. सोचो ध्यान से, कौन है जो नहीं चाहता कि तलवार आपके मुंह पे रहे? धर्मी ईसाई बन के रहो, रीति रिवाज में रहो, क्रिसमस में जाओ, गुड फ्राइडे में जाओ, ईस्टर में जाओ। Think carefully who doesn't want the sword to come out of your mouth. Who would want you to be a religious Christian, do all rituals, go for Christmas, Easter Sunday, do all that. मगर ये टीचिंग नहीं, But don't take this teaching. क्योंकि ये उसका, और अब तो भैया शुरू हो चुका है, इंडिया में बच्चा बच्चा परमेश्वर का वचन की घोषणा कर रहा है। And now it has started. Every child in India will declare the word of और God. ये रुकने वाला नहीं है। And this is not going to stop. हालेलुया। Hallelujah. ओके, अब मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर सुने, अगर किसी को डाउट है ये तो, I want कि you हम to hear. वर्सेस को तोड़ मरोड़ के तो आपको नहीं सिखा रहे। I want you to hear carefully if anybody has a doubt. We are not twisting the word for you. ओके, प्लेन जो बाइबल कहती है मैं केवल वो पढ़ के बताऊंगा, अपना इंटरप्रिटेशन नहीं घुसाएंगे। I will only read what the Bible says. I will not put my interpretation in it. यिर्मयाह 1:9, यिर्मयाह 1:9, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. यहोवा ने क्या छुआ यिर्मयाह का? कई मसीहों का आज ये छूना जरूरी है कि परमेश्वर उनका मुंह छुए। Many believers have this need that the Lord would touch their mouth today. यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। Then the Lord put forth his hand and touched my mouth, and the Lord said, behold, I have put my words in your mouth. कहां डाले हैं तेरे? Where has the Lord put his word? कहां डालना चाहता है परमेश्वर अपने वचन को? Where does God want to put his word? हमने लेदर की बुक में डाल दिए। We have put them in a leather book. ये जरूरी है, वरना मुंह में नहीं डाल सकते That's आप। important. पर Otherwise अगर ये लेदर की बुक में ही रहेगा but if it stays in the leather book, तो कई लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो नहीं समझते ना, वो शारीरिक जब ईसाई तो पता करते हैं, दुष्ट आत्माओं के ऊपर ना करते हैं बाइबल, यीशु के नाम से निकल। what some people do is because they are carnal, they don't understand. They take the Bible and they hit the people that are. अरे ये हथियार नहीं है, आत्मा की तलवार है, आत्मा की, आत्मिक हथियार है, शारीरिक नहीं है। This is not the weapon, the sword, the spirit is the weapon. It's not physical. पीटो मत लोगों को बाइबल से, Don't beat people with your Bible. मुंह खोलो और वचन की घोषणा करो। Open your mouth and declare the word. ओके, अब ध्यान से सुनो। Hear carefully. देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। See, I have this day. क्यों कह रहा है परमेश्वर तेरे मुंह में डाले? ध्यान से सुनो अब आगे। सुन
मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। Why has God put His word in our mouth? It says here, see, I have this day set you over the nations and over the kingdoms. जिन मसीहों के मुंह में परमेश्वर का वचन नहीं है वो कभी अधिकारी नहीं हो सकते। Believers who do not have the word of God in their mouth, they can never walk in authority. अगर अधिकार में चलना है, अगर अधिकारी की तरह चलना है तो परमेश्वर के वचन आपके मुंह में होने चाहिए। If you want to walk in authority, the word of God should be in your mouth. ओके, अब ध्यान से सुनो। उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। To root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. अब हियर दिस, ये जो परमेश्वर का वचन है ना, इसको बाइबल दो चीजें बोलती है। This word of God, the Bible calls it two things. बाइबल इसको कहती है सीड यानी बीज, और बाइबल कहती है सोर्ड यानी तलवार। It's a seed and a sword. तलवार से जो शैतान की तरफ से उसको नाश कर दो, और जो परमेश्वर के वचन आपकी जिंदगी बनाने वाले हैं उनको बीजों की तरह अपने हृदय में बो। With the sword, destroy what the devil is bringing against you, and with the seed, plant what the Lord wants to build in your life. ओके, फिर से मैं पढ़ता हूं। मैंने अपना वचन तेरे मुंह में डाला और तुझे जातियों का अधिकारी बनाया है। I have put my word in your mouth and I have made you an authority over nations. क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारा काम तो है, हम केवल प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर करेगा। Because some people say our job is to just pray and God will do something. आगे मैं इस पे बहुत टीचिंग बनाने वाला हूं एक, ठीक है। मैं वो करना नहीं चाहता था, पर जब छेड़ता रहेगा कोई तो फिर वचन से बनाना पड़ेगा। I'll give teachings on this. I didn't want to do this, but I'll have to do it. ये सारे लोग कैल्विनिस्ट हैं, आपको पता होना चाहिए कैल्विनिज्म। You कैल्विनिस्ट वो लोग हैं जो मानते हैं जो पृथ्वी पे हो रहा है वो परमेश्वर कर रहा है। You should know all these people are Calvinists, and Calvinists they believe whatever is happening on the earth, God is doing it. और ये एक डिमोनिक डॉक्ट्रिन है, And this is a demonic doctrine. और इस डॉक्ट्रिन की वजह से इतने सारे मसीह लोग मर गए अपने समय से पहले। And because of क्योंकि जो हथियार परमेश्वर ने दिया उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा काम है, हम केवल भीख मांगेंगे, परमेश्वर को करना है तो करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। And because of this demonic doctrine, so many Christians died before their time because they believe that our job is to beg in prayer, and what God will do, He will do. What He will not do, He will not do. अब वो क्या कह रहा है? मैंने तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी बनाया, उन्हें गिराने और ढा दे। तू गिराएगा, तू ढा देगा, कैसे? मेरे वचन जो तेरे मुंह में है। तू रोपेगा, तू बनाएगा, तू गिराएगा, तू ढा देगा, तू रोपेगा, तू बनाएगा। मैंने तुझे अधिकार दे दिया, अब जो अधिकार मैंने तुझे दिया उसका इस्तेमाल कर। Now God is saying, I have given you over, I have set you, I have made you authority over nations and over kingdoms. How? By putting my word in your mouth, so that you will root out and you will pull down, you will destroy and you will throw down, you will build and you will plant. अब सोचो, अगर एक लड़ाई के बीच में, और मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे लड़ें, Now think about it. If I'm in the middle of a battle and I don't want my kids to fight, तो मैं उन्हें कभी हथियार नहीं दूंगा। I will never give them weapons. मैं लड़ूंगा हथियार उनके लिए। I will fight with the weapons. मगर अगर मैं अपने बच्चों को हथियार दे रहा हूं, इसका मतलब मैं चाहता हूं मेरे बच्चे भी मेरे साथ उस लड़ाई में योगदान दें। But if I give weapons to my children, that means I want my children to also take part in this war. पौलुस कह रहा है क्योंकि हम एक आत्मिक मलयुद्ध में हैं, आत्मा की तलवार को उठा लो भैया। Paul is saying, because we are in the middle of a warfare, take up the sword of the Spirit. तभी अधिकार ले पाओगे। Only then can you take authority. ओके, सो काट डालने के लिए, To chop them off. दुष्ट आत्माओं के बंधनों को काट सकते हो इस तलवार से जो तुम्हारे मुंह में है। You can chop off the bondages of every demonic spirit through the सालों से sword जो in your mouth. ट्यूमर है, आत्मा की तलवार काट सकती है उन ट्यूमरों को, उस अर्थराइटिस को, उस दिल के दौरे को, उस डिप्रेशन को, जो रात को नींद नहीं आती है उसको। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे अधिकारी बनाया है कि तू नाश कर दे, तू काट दे जो शैतान के काम है उन्हें। The word of God has given you power. He has given you this sword so you can cut down every tumor, every cancer, every arthritis, so you can destroy every work of the devil. ओके, मुझे बुरा लगता है बहुत, आजकल इतने सिंपल कई मसीह यूट्यूब में जाते हैं, जो भी सिखाया जाता है I feel so bad. So many believers go to YouTube and gulp every wrong teaching that they see.
हाँ जी आप सही कह रहे हो। Yes, yes, सब you're right. परमेश्वर करता है। God does everything, yes. ओके, ये था पहला वचन, ठीक है। This was the first verse. दूसरा, Second verse. यशाया 51 उसका 16, Isaiah 51 verse 16. मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले। I have put my words in your mouth. दूसरी आयत, The second परमेश्वर verse. कह रहा है मैंने, God is saying, I have. पहले था जेरेमाया, First to Jeremiah, he said it. अब परमेश्वर कह रहा है आइजाया से। Now God is saying to Isaiah. ओके, कई लोग ये ना बोलते अरे वो तो केवल जेरेमाया के लिए वचन था। So that some people may not say this was only for Jeremiah. मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आड़ में छिपा रखा है। I have put my words in your mouth and I have covered you with the shadow of my hand. हिंदी में ना यहाँ पे सही नहीं है ट्रांसलेशन, इट सेज सो दैट आई मे प्लांट द हेवंस। In English it says ताकि मैं स्वर्गों को बो दूं। मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए कि स्वर्गों को मैं बो सकूं। आप स्वर्ग को बो सकते हो अपने जीवन में उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके मुंह में डाले हैं। Amen. I have put my words in your mouth so you can plant heavens on the earth. You can plant heaven by the word of God in your mouth. स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, There is no sickness in स्वर्ग heaven. में कोई दुष्ट आत्मा का सताव नहीं, There is no demonic स्वर्ग में oppression कोई in heaven. गरीबी नहीं, There is no poverty in स्वर्ग heaven. में कोई कलेश नहीं। There is no strife in अब heaven. इस बात को समझना, जब तक हम पृथ्वी में हैं, So as long यीशु as we मसीह are ने on the कहा earth, गॉस्पल से जो हमें सताव आएगा वो हमेशा रहेगा, उससे हमारा कोई छुटकारा नहीं है। Jesus said the persecution that comes because of the gospel will remain. There is no redemption from that. मगर कुछ ऐसी चीज हैं जो स्वर्ग में बांधी जा चुकी हैं जिनको आप पृथ्वी पे बांध सकते हो। But there are some things which have been bound in heaven so you can bind them on the earth. यानी आप पृथ्वी में, आप अपने जीवन में स्वर्ग को प्लांट कर सकते हो, बो सकते हो उन वचनों के द्वारा जो परमेश्वर ने आपके मुंह में डाले। सो हर बार इस बात को मैं चाहता हूं, इस थीम को आप ध्यान से सुनना कि वचन कहां पर हैं? आपके मुंह में। So you can plant heaven on the earth. Remember this theme by the word that is in your mouth. जब तक मुंह में नहीं है, Unless it's in your mouth, उनकी सामर्थ नहीं निकलेगी। their power will not come out. बढ़िया सा फ्रेम करके लगा दोगे घर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। If you put a good frame of the word in your house, it will not make any difference. ठीक है, ऑलराइट। चलो तीसरा, Third verse. अब मूसा की मृत्यु हो गई और यहोशू को एक ऐसे देश में जाना है जहां पर दानव हैं जो उनसे बहुत गुना बड़े हैं हर एक चीज में। Now Moses has died and now Joshua has to lead the people into this land of promise where there are huge giants. जो 10 जासूस थे, जो 12 भेजे गए, उसमें से जो 10 जो उस गोत्र के लीडर्स थे, जब वो वापस आए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बुरी खबर दी और उन्होंने कहा कि हम तो टिड्डियों की तरह थे उनके सामने। Out of the 12 spies that went to spy in the land, when they came back, 10 of them, they gave a bad report and said we were like grasshoppers in their sight. 10 out of 12, that's 80%। 12 में से 10 लोग, 80% लोग, बुरी खबर लेकर आए। they brought a bad report. दुख की बात यह है आज भी 80% जो पुलपिट है ना कलीसिया में, वो बुरी खबर का प्रचार कर रहे हैं। The sad thing is 80% of pulpits even today are preaching the bad news. वो 10 जासूस काफी थे 40 लाख इजरायलियों को कब्र में ले जाने के लिए। इसीलिए ध्यान दो किस पुलपिट की आवाज आप सुनते हो। Come on. Those 10 spies were enough to put 40 lakh people into the grave. So therefore carefully hear whose voice you hear. बीमारी आ रही तो ले लो परमेश्वर की तरफ से। Oh, sickness coming, take it because it's from God. मगर ये नहीं बताएंगे ना कि जब उनको आती है तो खुद डॉक्टर के पास जाते हैं, But खुद they भी नहीं ले लेते। don't. But they don't tell you when they get sick, they run to the doctor. They don't take the sickness. ध्यान दो Hear carefully क्या सुनते हो। what you hear. जितने इजरायलियों ने उनकी आवाज सुनी, Every Israelite that heard their voice, उन्होंने कहा हम कभी इस कनान के देश में नहीं जा सकते। they said they will never enter the land of Canaan. और बाइबल कहती है वो वहीं विल्डरनेस में मर गए। And the Bible records that all of them, they died in that wilderness. क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी?
Was it God's will? कि 40 लाख इजरायली, तो फिर परमेश्वर धोखा, अगर परमेश्वर की इच्छा थी उन्हें मरुस्थल में मार देना, तो फिर सबसे बड़ा धोखेबाज तो परमेश्वर है, Was it क्योंकि वो God's- उनसे ये कह के उन्हें मिस्र से निकाल के लाया कि मैं तुम्हें कनान में ले जा रहा हूं. Was it God's will to kill them all in the wilderness? If so, then God is the greatest deceiver, because He told them that I will bring you out of Egypt and take you into the land of ये promise. कैल्विनिस्ट डॉक्ट्रिन है कि This- जो हो रहा है वो परमेश्वर, बीमारी आ रही है तो ले लो, जो आ रहा है बीमारी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है. This is a Calvinist doctrine that if sickness is coming, take it. It has come to teach you something. परमेश्वर तुम्हें नम्र करना चाहते हैं. God wants कभी to बीमार make you आदमी को humble. देखा है? नम्र होते हैं बीमार लोग. Have you ever seen a sick person? Are they humble? बीमार से ज्यादा चिड़चिड़ा कोई नहीं होता. There is no more. Is no that one- true or not? There's no one who's more irritated than a sick person. परमेश्वर अपनी आत्मा और अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, बीमारियों के द्वारा Come नहीं. on. God teaches us through His Spirit and through His Word, not through sicknesses. ओके, सो अब जोशुआ को जाना है ऐसी जगह जो शारीरिक रूप में इम्पॉसिबल है जाना. Now, Joshua has to go to such a place where it is impossible for them to go physically. तो परमेश्वर क्या करता है? So, what the Lord does, परमेश्वर उसको वही चीज दे रहा है जो उसने यिर्मयाह और आइजाया को दी. the Lord gives them the same thing that He gave to Jeremiah and Isaiah. Joshua, this book of the law shall not depart from your mouth. यहोशू, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुंह से कभी ना उतरे. यहां पे हिंदी बाइबल ने बिंदी लगा दी, ये चित्त नहीं है, मुंह है. Here, it's not your aware, it's not your mind, but it's your mouth. मुंह. यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुख से रुकने ना पाए, लगातार इसकी. क्यों? क्योंकि जब आप लगातार वचन की घोषणा कर रहे हो, आत्मिक जहां में तलवारें निकल रही हैं, आपके मुंह से तलवारें निकल रही हैं.